So good morning once again to everyone. Good morning, sir. Firstly, on behalf of entire Mallikarjun family, a group of school which has the largest chain of schools in Uttarakhand, I welcome Mrs. Rajnikanta Bist ma'am, Director Swastian Public School Haldwani, as a resource person for this webinar on empowering teachers and teachings. Under this, she will be taking the topic how we can make students to receive. So welcome ma'am on behalf of us and whole Mallikarjun family. Before I begin with this webinar, I would like to give a brief introduction of our resource person. Earlier also I have already shared your profile with the teachers and coordinators already ma'am. But in order to just a brief introduction I would like to give. Mrs. Rajnikanta Bist is an eminent personality in the field of education in Haldwani and Kumaon. Ma'am has an excellent academic record during his school and college. She has an experience of more than 30 years in the field of education, holding different responsibilities at different schools of Kumaon region. Ma'am was the founder principal of Maharshi Vidya Mandir Bageshwar and BLM Academy Haldwani. And now she is a founder director of Swastian Public School Haldwani. Mrs. Rajnikanta Bist ma'am has won many awards in the field of education and also awarded with the Uttarakhand Ratna Award as the Principal of the Year in 2018. I also got a golden opportunity to work under his able guidance and learn how to be confident and different for different individuals on the basis of their individual differences. Ma'am has a different trend, or I can say aura, to deal with the people and the students. I have never seen any person unconvinced with the thought of ma'am. So I, on behalf of entire Mallikarjun family, pay my heartfelt gratitude to ma'am who took some time for us and help us in conducting this webinar for the betterment of my teachers and coordinators and other principals. And I can give assurance to my teachers and team that today's session you will be cherished all of your life and will really help you to see a bright side of your career. So I request you, ma'am, to please start with the conduction of the webinar. Over to you, ma'am. Thank you, Badal, for such an introduction. And I'll say that beauty lies in the eyes of the beholder, that how you see a person, right? So, good afternoon to everybody. And before I go ahead, am I audible to you? Yes, it is audible. Yes, ma'am. Okay. So before I go ahead, I want a smile on your faces. I cannot see smile on the faces of the teachers or the coordinators. As if forcibly they have been just brought to this seminar. So first there should be smile before receiving anything, right? So good. Thank you so much. Thank you so much. Yes. So once again, good afternoon to you all, the leaders and the pillars. The Good leaders. afternoon, ma'am. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon to all the leaders and the pillars of Mallikarjun family. Leaders, you know already, the principals, the directors, the managers, the coordinators who are at the helm of the affairs, and the pillars, the teachers. I always say the teachers are the pillars of an educational institution or educational system, right? So you have to be proud of yourselves that we are the pillars of education system. Right. So any country can be judged with its either health system or education system. Right? If you want to judge any country, so first judge its health system. How are the health services in the country and how are the education services in the country? Right? So on those lines you have to judge a country, and then you can very well imagine the position of India. Right? So, who has to take the responsibility? This is a question first.
right? Who has to take the responsibility that education system will be the best? This is a question. We'll answer. I don't want the answer, and you can very well imagine the answer, right? So how this point came to my mind that the child is to be prepared to receive, that I'll let you know. Before that, as Badal sir told, that empowering the teacher. Keep one thing in your mind, that you have to empower yourselves your own. Don't depend on anybody for your empowering, right? Right? If you want to be empowered, that you have some power, so you have to work your own, right? You must have that aim in your hand, aim in your mind and heart, that I have to do this thing, and the things fall in their places their own, right? Automatically you get the support of the nature and you go ahead in achieving your aim, right? So this is to be kept in mind. So why this topic came to my mind, that how to prepare a child to receive, that has a long story. But before that, I'll ask you a question, that what are the problems of the education system that you are facing as a teacher, the problems that you are facing, what are the problems? You can say the very first, I can just help you in telling that you don't get the cooperation of the parents as you expect. This is the first problem, that you don't get the cooperation of the parents that you expect. So take it granted that you will not get the cooperation of the all parents, right? This is the limitation of the teacher, and with this limitation even you have to give the result, right? You are supposed to give the result. You cannot blame anybody, because later when the child passes out the school, he'll not say that I can blame my principal, or I can blame the coordinator, or the director, or the manager, है ना? He'll blame the teacher only, that because of the teacher I could not make my career well, right? So think that you will not, this is the limitation all over India, that the teachers, they don't get cooperation of all the parents, right? Now what is the next problem? There are many problems, I know, and they are not to be told a problem, they are to be told they are to be called a limitation, a constraint, that this is a constraint, that time is less, classes are crowded. All these limitations you have to give the result, because results are to be given, right? So what is your problem, main problem that you face, that you want help of someone, because I'm here to help you. So what is the main problem that I can help you, right? What is the main problem? Attendance can be a problem, that the children don't come to school, they don't do homework. So there are various, innumerous problems that the teachers face, because I am also a teacher first and anything else later, right? Though I had the responsibilities like vice principal, principal, advisor, director, है ना? But basically I am a teacher. So I very well understand the problems of the teachers, right? So the major problem, the most major problem, what is the most major problem that you face? If anybody can tell, well, otherwise I can help you. If anybody can tell, that is a major problem, one major problem that the teachers face, and for that they need help, because I have more experience than you, so I can help you, है ना? Because I have more experience than you. You are upcoming teachers. So I'm like a resource for you. I can help you. Right? What is a resource? Resource means anything that you can exploit to make its use. So one major problem that you face, can anybody tell me? Any one person? Yes, ma'am. I would like to say something related to that. One problem, only one. My concern is the deviation of students from the study. Means they are focusing more nowadays to social media and the games and all the things, right? Okay. So my concern is how to bring them back to the education. Good. Very good. This is only my topic. Thank you so much. In B.Ed, you would have just taught that you don't have to tell the students what you are going to teach, right? And I had told Badal is the witness. I had told Badal that don't give the topic, on which topic I am going to talk to the teachers. I had told Badal, though Badal had just given you the topic,
But I had told Badal that don't give the topic. Let it come from the teachers, the problem that they face, right? So choose deviation from the studies and towards their focus more on the social media. Why do they focus more on the media? Because they know already that their work is to study. Their work is to study, right? I tell my student every day in assembly, I get it repeated. English mate is all can understand, na? Is it to be made bilingual, Badal? Yes, ma'am. That's No fine. need, no? No need to make it bilingual. It can be in English only. Yeah, you can make Yes. In English only it is comfortable. Okay. For Hindi and Sanskrit teacher, it will be slightly difficult, ma'am. Right. Can be Okay. It will be bilingual, ma'am. Bilingual. चलो, I can be Yes, doing. yes. Yeah. देखो assembly में ना every day I tell my students to repeat some sentences. It will be bilingual. कि I am a student, right? My work is study. My work is to study. Though I love playing, मुझे खेलना अच्छा लगता है ना? पर खेलना मेरा काम नहीं है. मेरा काम पढ़ना है. मैं इस बात को असेंबली में हर दिन बच्चों से रिपीट करवाती हूँ कि मुझे खेलना अच्छा लगता है, पर खेलना मेरा काम नहीं है, काम मेरा पढ़ना है ना? मैंने कहा देखो बेटा, एवरीबडी हैज सम वर्क. योर पापा अर्न मनी फॉर द फैमिली, है ना? ममा लुक्स आफ्टर द फैमिली. एंड व्हाट डू यू डू एनीथिंग? कुछ काम करते हो आप? घर का काम करते हो? नहीं करते ना? तो आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? पढ़ना. ठीक है? खेलना सबको अच्छा लगता है, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, बट खेलना इज नॉट योर वर्क. सो कुछ भी खेलते हैं आप, वो देखिए कि वो आपका वर्क नहीं है. इट शुड बी लिमिटेड, राइट? सो इट मीन्स द स्टूडेंट्स दे आर मोर मीन्स डाइवर्टेड टूवर्ड्स सोशल मीडिया एंड ऑल. क्योंकि क्या है, उनको स्टडीज इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है. पहले तो बच्चों को ये बताना है कि आपका काम, आप यू आर ए स्टूडेंट, आपका काम पढ़ना है. अब आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं दैट्स अनदर इशू, पर आपका काम पढ़ना है. ठीक है? अब क्या है, हाउ विल टेक इट? बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए दे आर टूवर्ड्स सोशल मीडिया. ऑल आर नॉट टूवर्ड्स सोशल मीडिया. ऑल आर नॉट बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स आल्सो. सारे बच्चे नहीं है ना? कुछ बच्चे. तो उसका रीजन क्या है? ठीक है? विल डिस्कवर द रीजन टुडे. दिस इज द टॉपिक टुडे. दिस इज द सब्जेक्ट टुडे, राइट? अच्छा ये बताइए, देखो क्रिसमस हर स्कूल में सेलिब्रेट होता है. एवरी स्कूल सेलिब्रेट्स क्रिसमस विद ऑल फन एंड फेयर. यू नो ऑलरेडी बहुत कुछ होता है. मतलब जितना अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, शायद एनी अदर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट हु इज सेंटा क्लॉज? Who is Santa Claus? And what is the relation of Santa Claus with Christmas? बताइए. Can anybody answer? कि Santa Claus comes, children they love, है ना? He dances also, distributes the toffees also, everybody loves. But who is Santa Claus? Does anybody know out of you? I doubt. No, nobody knows. Right? So this is the state of teachers. Fortunately, there is no student around. Only teachers are in this webinar or in this conference. So they'll say, if the teachers themselves don't know, how will we know? Right? तो अभी क्या है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में we keep on giving the information to the students, but neither the students ask nor the teacher bothers to know the answer. अब ये मेरे दिमाग में कैसे आया, देखिए. अभी Swasthyan we have opened and we have, this is first session only, so we have a strength of 80 enrollment was there, and class 5th I was teaching English, so there are only 9 students in the class. अब मुझे लगा जब when I started the class, तो enthusiastically I started the class कि I'm a very good teacher and there are only 9 children and I can do miracle with the 9 children, right? I'll give such a good result of the 9 children that I'll be proud of myself. But I failed. I could not give as good result as I wanted. I myself failed, right? So I just searched the answer. मैंने क्वेश्चन किया कि भाई क्या बात हुई, रिजल्ट क्यों नहीं आया? अच्छा, क्यों रिजल्ट नहीं आया? अच्छा, एक चीज पर हम Swasthyan में फोकस कर रहे हैं कि आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछो आप क्या जानना चाहते हो, है ना? बच्चों के पास क्वेश्चन ही नहीं होते. अभी इस समय टाइम नहीं है. समडे एल्स आई जस्ट टेल यू कि जब भी हमने उनको एक्सपेरिमेंट दिखाया बच्चों को, तो बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे
जो क्वेश्चंस अच्छे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों ने नहीं पूछे। तो मैंने डिस्कवर किया कि बच्चा जो है ना वो स्कूल, चाइल्ड इज सेंट टू स्कूल। देखिए, नोट इट अ पॉइंट, नोट दिस पॉइंट कि व्हेन चाइल्ड कंप्लीट 3 इयर्स, 3 साल का बच्चा हुआ, उसको स्कूल भेज देते हैं। वो स्कूल इसलिए नहीं आता कि उसके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर जानने के लिए वो स्कूल आता है। वो स्कूल क्यों आता है? क्योंकि एक रूटीन कोर्स है हमारा कि 3 साल का बच्चा हुआ तो 3 साल के बच्चे को हम स्कूल भेज देंगे, राइट? वेयर एज व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कूल? स्कूल का रोल क्या है कि बच्चे की जो क्वेरी है, जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, उसको सेटिस्फाई करना। दिस इज द रोल ऑफ द स्कूल। रोल ऑफ द स्कूल इज नॉट टू टीच, राइट? हम क्या कर रहे हैं? द चाइल्ड कम्स टू क्लास, वी स्टार्ट द लेसन, वेदर द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन दैट लेसन और नॉट, वी लीस्ट बॉदर। अब उसमें क्या होता है, 2-3 बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए और उन्हें कंपटीशन में निकलना है। बट दे आर नॉट स्टडीइंग दोस टॉपिक्स फॉर नॉलेज, राइट? वो केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें नंबर लाने, या तो पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है या किसी कंपटीशन में क्वालिफाई करना है, राइट? पर वो इसलिए नहीं उसको याद कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी क्यूरियोसिटी है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे आर लर्निंग दैट, right? And this is the reason India is far behind in researches. This is the reason. देखो, इंडिया में इतनी कार्स है, ब्रांड्स यू नो ऑलरेडी। बताइए, हाउ मेनी ऑफ वी प्रेफर एनी इंडियन ब्रांड? वी प्रेफर फॉरेन ब्रांड ओनली। आप मोबाइल लेने जाते हैं, आप फॉरेन ब्रांड प्रेफर करते हैं। क्यों? वाई इंडिया इज अनेबल टू मेक समथिंग ओरिजिनल इन इंडिया दैट पीपल कैन प्रेफर। आजकल देखिए इतना चल रहा है कि चाइनीज बंद करो, चाइनीज बंद करो। बट अगर आप चाइनीज बंद करेंगे तो व्हाट इज द ऑप्शन? Options are not as good as the Chinese resources I would say, right? तो हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या कारण है कि हमारे इंडिया में ऐसी रिसर्चेस नहीं हो रही हैं कि we don't need to depend on any other country for their research, right? So it starts from the school. We will have to take the responsibility. The teachers will have to take the responsibility, because teachers are not teaching in such a way that we can make the child curious. कि बच्चा कुछ जानना चाहता है, वो सुबह आता है तो वो enthusiastically स्कूल आता है कि now ma'am, how does it happen? Why does it happen? Right? Students don't have. So when I tested in last 1 year, I was just testing these things only, and I found that children were not curious, were not inquisitive. So I thought we have failed in class nursery itself. What we do in class nursery, we start with alphabets A, B, C, D. What is the need to teach them A, B, C, D? वो सीख ही जाएंगे, अपने आप सीख जाएंगे वो A, B, C, D with due course of time, है ना? हम उन्हें एक्सपेरिमेंट दिखाएं कुछ, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर वो हमसे पूछे कि ये क्यों हो रहा है। That inquisitiveness is to be inculcated in class nursery itself. Now in Swasthyan, I have decided that I'll make a kit. एक स्मॉल किट मैं बनाऊंगी जिसमें छोटी छोटी चीजें होंगी, जैसे कंपास है, मैग्नेट है, स्मॉल मिरर्स हैं, है ना? These types of things I am just planning to keep in a kit, and that kit will be with every student. And every day we will do some experiment in school, so that the child asks that why does it happen, how does it happen. अभी लॉकडाउन में हमने यही किया। हमने लॉकडाउन में क्या किया कि हर दिन एक साइंस एक्टिविटी भेजी, और बच्चों से हमने कहा कि ये साइंस एक्टिविटी आपको करनी है। अब आप देखिए, we used to send initially when the lockdown started, we did not start the class. हमने क्या किया, one science activity and one art activity we sent every day, and it was in English. You won't believe, हर बच्चा उसको समझा, थोड़ा बहुत पेरेंट्स ने भी समझाया होगा, लेकिन कहीं पर पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड नहीं थे कि जो अंग्रेजी समझ सकते, तो वहां पर भी हर बच्चे ने उसको समझा, और हर बच्चा was able to do those activities, क्योंकि it was interesting for the child. Everybody, almost everybody make, you can see our Facebook account, तो आप देखेंगे कि हमने Facebook अकाउंट पे वो लगाया है, हमारा जो Facebook है उस पे हमने लगाया हुआ है। तो मैंने टीचर से कहा, मैंने कहा देखो
आज बच्चे खुद समझ रहे हैं इसको, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इट इज इंटरेस्टिंग फॉर द चाइल्ड. So there is no need of teaching it, explaining it. What do? We go in class and we start explaining the lesson without knowing whether the child wants it or not. What we have to do in class, we have to get the answers from the students only. Initially, जब आप ये शुरू करेंगे तो शुरू में आपकी प्रोसेस विल बी स्लो होगी. एक दिन में, एक हफ्ते में शायद आपका एक लेसन भी पूरा ना हो जाए. बट वंस यू हैव टॉट द चाइल्ड टू डिस्कवर द थिंग्स, सो लेटर योर वर्क विल बी इजी. आपका काम आसान हो जाएगा बाद में, है ना. हम लोग क्या करते हैं, वी टेल देम कि दिस इज हाउ, दिस इज सो एंड सो, दिस इज सच एंड सच. देयर इज नो नीड टू टेल. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. क्लास नर्सरी का या एलकेजी में आप शुरू करते हैं, क्योंकि दो these examples are of the small classes but can be applied anywhere, right? हम कहते हैं what comes after, what comes before. What is the need to teach it? What comes after, what is before? बच्चे को before और after आना चाहिए, केवल उसका मीनिंग आना चाहिए. बाकी तो उसको पता चल ही जाएगा कि what comes after, what comes before. And we 1 year मतलब एलकेजी में या यूकेजी में जहां भी आप लोग स्टार्ट करते हैं, वहां पर you are teaching them what comes after, what comes before. मैंने कहा ये नहीं कराओ अपने यहाँ. मैंने कहा उनको ये कराओ कि उनको दे शुड नो द मीनिंग ऑफ आफ्टर एंड बिफोर. आप किसी भी चीज का एग्जांपल दे दो. मैंने कहा स्पेलिंग का एग्जांपल दो आप. गिव देम अ स्पेलिंग लाइक रैट यू हैव गिवन. सो व्हाट इज आफ्टर ए, व्हाट इज बिफोर ए, व्हाट इज जस्ट आफ्टर आर, एंड व्हाट इज आफ्टर आर. सो ए एंड टी आर आफ्टर आर एंड ए इज जस्ट आफ्टर, है ना. तो उनको आफ्टर और बिफोर आ गया. अब वंस दे हैव अंडरस्टूड आफ्टर बिफोर, तो दे कैन अप्लाई इट एनीवेयर दे हैव टू यूज, राइट. मैथमेटिक्स आल्सो वी टीच प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. यू नो ऑलरेडी, यू माइट बी टीचिंग इन द लोअर क्लासेस आल्सो. तो मैंने टीचर को बोला भाई, मैंने कहा मैथ्स में ही क्यों सिखा रहे हो इसको, आप बच्चे को मीनिंग बता दीजिए प्रीडिसेसर का और सक्सेसर का. So madam made a video, our madam made a video. I can send you those videos, beautiful videos our teachers have made in this lockdown. मैंने कहा आप इंडिया के पूरे प्राइम मिनिस्टर्स बता दो, एक वीडियो बनाइए, उसमें बताइए who is the successor of whom and who is the predecessor of whom. दो चीजें बच्चा सीखेगा. एक तो कि who were the prime ministers of India, and second he learn the meaning of the word predecessor and successor. Understood? How many of us tried this thing? We teach them in only numbers. We teach them only numbers कि what is the predecessor and what is the successor. और कहीं नहीं कराते हम. तो वो सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि शायद predecessor क्या है, केवल मैथ्स में होता है. They cannot use that word elsewhere. They cannot use that. It's a vocabulary. It's a vocabulary. You can make a vocabulary. वो बच्चे की वोकेबलरी बनाना है, उसको एक वर्ड प्रीडेसेसर और सक्सेसर आ रहा है. बताइए कितने बच्चे जिनको प्रीडेसेसर और सक्सेसर नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया है उस वर्ड को आगे यूज कर पाते हैं? नन नन नन. एग्री, डिसएग्री, है ना. अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैथ्स में द मिस्टेक्स दैट वी आर कमिटिंग, वी आर फोकसिंग ऑन न्यूमेरिकल मैथ्स. फिर हम बाद में कहते हैं कि बच्चा मैथ्स में कमजोर है. बादल सर इज देयर गिविंग द स्माइल आल्सो. अगर बच्चा मैथ्स में कमजोर है तो उसका फाउंडेशन में कुछ गलती हुई है. ये नहीं है कि टीचर वाज नॉट केपेबल. टीचर ने क्या किया है, उसको न्यूमेरिकल मैथ्स पढ़ाया है, उसको लॉजिकल मैथ्स नहीं पढ़ाया है. दैट फाउंडेशन इज टू बी मेड इन क्लास 1 and 2 ओनली. दैट चाइल्ड नोस व्हाट इज लॉजिक एंड व्हाट इज न्यूमेरिकल. जैसे हमने कहा एक एडिशन दे दिया हमने बच्चे को, दैट इज न्यूमेरिकल, सिंपल. हमने कुछ नंबर्स दे दिए. अब हमने कहा कि आपके पास यू हैड 4 टॉफीज, योर पापा गेव यू 4 more टॉफीज, सो हाउ मेनी डू यू हैव, राइट. सो हम उसको एडिशन में न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं बताएंगे, हम उसको पहले हम लॉजिकल में बताएंगे. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने भी शुरू किया उसको कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमको एक साथ बताना है बच्चे को. अलग अलग नहीं बताना कि पहले एडिशन बताया, फिर सब्ट्रैक्शन बताया, फिर मल्टीप्लिकेशन बताया, फिर नहीं. एक साथ यू हैव टू मेक अ वीडियो जिसमें आपने कहना कि दिस इज मल्टीप्लाइंग, दिस नंबर इज मल्टीप्लाइंग, और दिस इज नंबर इज डिक्रीजिंग, दिस नंबर इज इंक्रीजिंग. हियर वी डिड एडिशन सो इट हैज इंक्रीज्ड, हियर वी सब्ट्रैक्टेड सो इट हैज डिक्रीज्ड, हियर वी हैव डिवाइडेड एंड हियर वी हैव मल्टीप्लाइड. Right?
So he will understand the meaning of the word addition, subtraction, division and multiplication. Doesn't know, the child cannot use the word multiplication later. Nobody uses that, oh, the problems are multiplying because of corona. The problems have multiplied because of corona. How many people can use this word as a multiply? Though you know the word multiply, because you haven't taught the meaning of the word multiply. Right? So these are the mistakes that we are committing in lower classes, and that's why the child, whatever you tell the child accepts. Child doesn't ask question that why, how, right? Now, electricity lesson we had taught, Badal sir very well remember when Badal sir was with me. So electricity, we made videos of electricity. I can send those videos to you. And it was supported by my audio. I added some audio also in that. So there is a child in our school in class 1. She has gone in class 2nd and her mother is a doctor. तो मैंने उनकी मदर को फोन किया, मैंने कहा मैं ये वीडियो भेज रही हूँ आपको और इसके साथ मेरा ऑडियो भी है, आप जरा बच्ची को समझाइए कि बच्ची को इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया कि नहीं आया. उन्होंने कहा मैम समझ में आ गया. क्लास 1 के बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया बिकॉज वी सिंप्लीफाइड इट. हमने कहा भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कह देते हैं सिंपल. नो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट. इन अ सर्किट जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा सर्किट में, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो. और आपका स्विच क्या करता है? स्विच वही काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट को कंप्लीट करने का. द मोमेंट यू स्विच ऑन तो क्या होता है, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया. एंड देन ओनली द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज एंड इट वर्क्स. Otherwise, electricity cannot work until and unless you switch it on. Switch it on, right? So, it is up to the teacher how to simplify. That we are unable to do, and then what we do? We blame the students. We are unable to simplify the topic. अब देखिए हिंदी में था, अभी हिंदी की मैडम से हमने कहा, अभी हम लोगों ने क्या किया कि हमने सारे टीचर्स को बुलाया, हमने कहा बताइए एक एक टॉपिक कोई भी आप लीजिए पढ़ाइए. तो हिंदी की मैडम ने तत्सम और तद्भव लिया. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बच्चे को बता देते हैं कि ये इनको तत्सम कहते हैं और इनको तद्भव कहते हैं. ठीक है, जो शुद्ध है वो तत्सम हो गया, जो इसका अशुद्ध हो गया वो तद्भव हो गया. मैंने कहा नहीं, ऐसे मत बताइए. तत्सम माने उसके जैसा और तद्भव माने जो उससे हुआ. भाव माने होना, जो उससे हुआ. तत्सम माने उसके जैसा और तद्भव माने उससे जो हुआ. आप लोगों ने पढ़े होंगे, हिंदी तो सभी लोगों ने पढ़ी है ना. तो क्या है कि बच्चों का तत्सम माने ये कहां से आया? संस्कृत से आया. तत्सम माने संस्कृत जैसा और तद्भव माने उससे क्या हुआ. अब रात्रि और रात, दुग्ध और दूध, है ना, वो उससे हुआ है, राइट. घृत, घी, जो उससे. अब आपको आगे नहीं बताना है, अब आगे आपको बिल्कुल नहीं बताना है. अब आगे आपको उनको वर्ड्स दे देने हैं और वो खुद उनको सेग्रीगेट करेंगे कि कौन से वर्ड्स तत्सम है, कौन से शब्द तद्भव है ना. सो दिस शुड बी द वे. रस, अभी हमारी मैडम जो है रस पर प्रेजेंटेशन बना रही थी, तो उन्होंने क्या किया, रस लिखा और ब्रैकेट में हिंदी लिख दिया. मैंने कहा डोंट राइट हिंदी, पहले केवल रस लिखवा. अब पूछो बच्चों से कि बेटा जैसे ही रस शब्द आता है बताओ क्या आता है आपके मन में. तो वो कहेंगे भाई मीठा रस, खट्टा रस, है ना, कड़वा रस, नमकीन रस आएगा उनके दिमाग में, बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रस, क्योंकि आप पहली बार पढ़ा रहे हैं, उनको पता नहीं कि रस हिंदी में भी होते हैं, है ना. अब आपने उनसे कहा कि ऐसे ही जब कभी आप कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ भाव उठते हैं. कुछ भाव को देख के आपको हंसी आती है, कुछ भावों को देख करके आपको खुश आनंद होता है मन में, कुछ भावों को देख के आपके आंसू आते हैं, कुछ भावों को देख के आपके अंदर वीरता का भाव आ जाता है, कुछ भावों को देख करके आपको गुस्सा आ जाता है. होता है ऐसा? बच्चे कहेंगे हाँ होता है. मूवी में देखो क्या क्या होता है, मूवी में आपको ये सारे भाव देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब उन्हें बता दीजिए कि भाई ऐसे ही क्या होता है, साहित्य में भी रस होते हैं, है ना. और रसों के नाम बता दीजिए बस केवल अब आप. ठीक है, और रसों के नाम भी मत बताइए, आप उनको एग्जाम्पल दे दीजिए सारे रसों के, कुछ कविताओं के दे दीजिए और उनको बोले बताइए इसमें आपको कैसा भाव आ रहा है. गुस्सा आ रहा है,
या हंसी आ रही है या रोना आ रहा है, वो खुद बताएंगे। और दे अंडरस्टैंड रस एंड दे नेवर एवर फॉरगेट रस, नेवर एवर फॉरगेट, है ना। तो आपको क्या करना है, उन्हीं से निकलवाने हैं आंसर्स, उन्हें यू डोंट हैव टू गिव द आंसर्स टू देम, राइट। दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर एंटरिंग द क्लास। देखो टीचर के पास 4 वर्क्स है। प्रिपरेशन ऑफ द क्लास, इट डजंट मीन कि आपने पाठ पढ़ा और पढ़ाने चले गए, नो। कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है कि चाइल्ड शुड गिव द आंसर, एंड देन एनालिसिस। उसके बाद एनालिसिस कि वेदर यू कुड मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड और नॉट, बच्चे की समझ में आया कि नहीं आया। हमारे यहाँ क्या होता है स्कूलों में, एवरी स्कूल 1 वे प्रोसेस चलती है। हम पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, एक दिन टेस्ट लेते हैं, उसमें आधे बच्चे फेल होते हैं आधे बच्चे फेल, यू नो ऑलरेडी। मैथ्स अगर हम लेंगे तो, अगर मिक्स क्लास है, हेट्रोजीनियस क्लास है, क्योंकि हम डे टू डे इवेल्युएशन नहीं कर रहे हैं, डे टू डे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि वेदर वट एवर आई टॉट द चाइल्ड अंडरस्टूड और नॉट। अगर हम डे टू डे उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके लिए अ प्रोसेस इज टू बी मेड फॉर दैट, स्कूल सिस्टम हैज टू मेक द अरेंजमेंट दैट हाउ कैन वी डू इट, है ना। सो इन डूइंग सो you will be able to finish a little course, but whatever will be transferred to the child, it will be permanently learned by the child, it will be permanently learned by the child, right? So this way you have to discover the things, how you have to teach in any topic. अब now देखिए, आपके पास you have many subjects, 8 subjects are there: Hindi, English, Math, Science, SST, Sanskrit, GK, Computer. But what is focused upon? Even CBSE, STEM. These days you would have heard this word STEM: Science, Technology, Engineering and Maths. Science, Technology, Engineering and Maths. Because these are the 4 areas where we have to focus upon. Hindi and English are languages. ये बताना है आपको बच्चे को कि हिंदी और अंग्रेजी आर लैंग्वेजेस। अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड साइंस, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स। दिस इज द रोल ऑफ द लैंग्वेज टीचर, कि अगर बच्चे का हिंदी कमजोर है या मैथ्स कमजोर है, वो कैसे समझेगा, सॉरी इंग्लिश कमजोर है तो सब्जेक्ट कैसे समझेगा। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम कि बच्चे को अंग्रेजी में समझ में नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आती, और बच्चे को हम साइंस पढ़ा रहे हैं, राइट। सो हमें क्या करना, वी हैव टू फोकस अपॉन स्ट्रेंथनिंग दीज 2 लैंग्वेजेस, एंड पेरेंट्स टू आर टू बी टोल्ड एंड स्टूडेंट्स आर टू बी टोल्ड दैट जब तक आपका लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं होगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड साइंस, राइट। सब्जेक्ट्स आर ओनली 2, साइंस एंड मैथ्स, जिसको पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। बाकी हिंदी इंग्लिश द चिल्ड्रन कैन स्टडी देयर ओन। अगर बच्चा क्लास 6 में आकर के 7th में आकर के SST खुद नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब है उसको अंग्रेजी नहीं आती है, इसका मतलब कि ही इज वीक इन इंग्लिश, राइट। सो अपने यहां हमने तो क्या किया, EVS में मैंने कहा EVS नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे ही नहीं, आपको खुद पढ़ना है। हिंदी में देखिए बच्चे को बोलनी आती है, समझनी आती है, केवल लिखने में गलती करता है बच्चा, केवल उसको बोलनी आती है, आप जो भी उससे बोलते हैं वो समझता है, अच्छे समझता है, जवाब देता है, हिंदी में जवाब देता है, इसलिए हिंदी में उसे केवल लिखनी नहीं आती है। तो हमें क्या करना, पढ़ाना नहीं है क्लास में, हमें बच्चे को हिंदी लिखानी है एज मच एज पॉसिबल, राइट। सो अब इंग्लिश है, देखिए इंग्लिश में हमें बच्चे को पढ़ना सिखाना है, इंग्लिश। So we need not to teach, give the lecture, you are explaining the lesson. No need of explaining the lesson, no need of. आपको क्या करना है, जितने उसमें वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसको हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, यहाँ पर हैंडआउट्स हम देते हैं बच्चों को, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग, उन वर्ड्स से कितने वर्ड्स के एंटोनिम बन सकते हैं, कितने वर्ड्स के होमोनिम्स बन सकते हैं, कितने वर्ड्स के सिनोनिम बनते हैं, वो हम हैंडआउट बच्चों को पहले ही दे देते हैं, और फिर उन वर्ड्स की हेल्प से बच्चा जो है टॉपिक को खुद पढ़ता है। मैंने कहा नहीं हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब नाउ राइट द आंसर्स। जो वो वर्ड्स हमने दे दिए बच्चे को, वो वर्ड्स बच्चे का टेस्ट होना है उसमें, कि हम उसमें क्या करते हैं,
फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज बना देते हैं और बच्चे से कहते हैं अगर आपने इफ यू आर एबल टू फिल द वर्ड्स करेक्टली इन दिस फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज इट मींस यू हैव अंडरस्टूड दोज वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. English is vocabulary. English is not that you are able to speak a few sentences in English. It is not English. English is vocabulary. Right? हिंदी है, देखे एक मजदूर भी है वो हिंदी बोलता है, क्या उसको हिंदी आती है? नहीं, उसको हिंदी नहीं आती. उसको हम हिंदी पढ़ाने को नहीं दे सकते, उसे हिंदी नहीं आती, उसे केवल बोलना आता है. ऐसे ही एक एलकेजी का बच्चा है, वो हिंदी में अपने को पूरा एक्सप्रेस कर लेता है, बट उसको हिंदी नहीं आती है. आजकल हम लोगों की इंग्लिश भी ऐसी ही है. We are able to speak English, a few sentences, but we don't know language. We don't know language. And language is strengthened only by reading. चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश. अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं हो सकती है. और फिर अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है तो आप सब क्लास में जस्टिस नहीं कर सकते. दिस इज टू बी एक्सेप्टेड. What efforts are you making to strengthen your language? That you have to introspect. Right? There are two things. One is job and the other is service. That you went to school, taught and came home and forgot about. Therefore, this is limitation of the teacher. We have to accept. Those who are coordinators, who are principals, who are managers, who are directors, उनको ये समझना है कि टीचर कितना काम कर सकता है. That much work only is to be given to the teacher. Then only they can do justice with the teacher, with the work. Otherwise, they cannot do. If a teacher is overloaded with the work, so teacher cannot do justice. उसको इतना टाइम होना चाहिए कि वो सोच सके. ये जो आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ, ये क्यों नहीं आते टीचर्स के दिमाग में? क्योंकि टीचर्स के पास सोचने का टाइम नहीं होता है ना. जैसे अभी रिसेंटली हमारी एक मैडम है, वो शेप्स पे बना रही थी वीडियो. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने शेप्स पे वीडियो बनाया. तो मैंने कहा नहीं, ये आपका तरीका सही नहीं है. अब हम शेप्स पढ़ाते, हर क्लास में पढ़ाते है ना. तो मैंने कहा उनको आप क्या कीजिए, बच्चों को पहले एक लाइन दीजिए. उनके बोले एक लाइन से आप कुछ बना सकते हैं? बच्चे कहेंगे नो. अब आप 2 लाइन दीजिए. 2 लाइन से क्या बना सकते हैं? एंगल बना सकते हैं, क्रॉस बना सकते हैं. अब वहीं पे एंगल्स आप बता सकते हैं. ये मत सोचिए कि बच्चा ये नहीं समझ सकता कि एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है और ऑब्ट्यूज एंगल क्या है. वो उसको समझा दिया. क्लास 1 का बच्चा कैन अंडरस्टैंड. आई कैन गारंटी है ना. आपने उसको दिया एक लाइन, फिर 2 लाइन्स, एंगल बन गया, क्रॉस बन गया. 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस. एक में ऑल 4 आर इक्वल, एक में ऑल 4 आर नॉट इक्वल. अब आप 3 दीजिए उसको. 3 के बाद बोलिए बनाइए इसके शेप्स बनाइए, ट्राइंगल बनाएगा. अब आप 4 दीजिए उसको. अब आप 5 दीजिए, वो अपने आप बनाएगा. नाम मत बताइए उसको कि ये ट्राइंगल है. बिल्कुल नहीं बताना आपको कि ये पेंटागन है, ये रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है. बिल्कुल नहीं बताना आपको. उसके बाद उससे पहले ही आप उनको नंबर्स बता दीजिए. मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये 10 तक याद करा दीजिए. मैं हर दिन असेंबली में क्या करती हूँ बच्चों से, मैं कहती हूँ चलो रिपीट विद मी. मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका. ठीक है, ये नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, ये आपको याद करें. अब अगर बच्चे को ये पता ऑक्टा माने 8, नोना मीन्स 9, पेंटा मीन्स 5. अब उसको शेप का बोलिए कि इसको ट्राई एंगल कहते हैं, या है ना, इसको पेंटागन कहते हैं. इसमें पेंटा है और गन है. ठीक है, तो ये पेंटागन है. तो हेक्सागन वो खुद बताएगा. अब उसको पूछो इसका नाम क्या रखें हम. चलो बताए, पूछे. उसको तो नहीं पता नाम. अब आप उसको पूछे इसका नाम क्या रखें. अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन बार बार मैथ्स के टीचर से पूछा है, पीजीटी से पूछा है, नोबडी आंसर्ड. दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रायंगल एंड अ ट्राइगन. पता नहीं बादल को याद है नहीं, बादल से पूछा नहीं पूछा, मुझे नहीं याद है. पूछा था. Trigon and a triangle. So the teacher, they get confused. It's the same thing. Trigon means when we are referring to the sides. When we are referring to the angle, then it is triangle. When we are referring to the sides, it is trigon, pentagon, hexagon, heptagon. है ना? So you don't have to tell them the name. And then recently came to my mind that now shapes, when we are telling them shape pyramidal, why are we telling them the pyramid? Why are we not telling the tetrahedral? Sides are hedral. Badal can understand very well. Science teachers can understand very well. है ना?
tetrahedral, then show them something. Now it has 5 faces. What will be its name? They will tell their own. Pentahedral. Exactly. So let them discover the names. Don't tell them anything directly. Are we doing such things? No. And then what? No. And then we blame the student that they are unable to understand. Right? So what we have to do? We have to make it interesting. देखिए मैम इंग्लिश में मैंने क्या किया, क्लास 5th में मैं 8th की बुक लेकर के गई और मैंने 8th की अनसीन पैसेज 8th का था और उसमें एक क्वेश्चन था, मैंने कहा राइट द आंसर ऑफ दिस. तो वो इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज फॉर क्लास 8th, मैं क्लास 5th में ले गई थी. तो मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा कि ट्राई, यू हैव टू ट्राई इट एंड द होल पीरियड इज देयर. तो एक बच्चे ने कर लिया, उसने कहा कि मैम आई हैव डन. तो जैसे उसने क्या कि दूसरे बच्चे के लिए प्रेस्टीज इशू हो गया कि इफ शी कुड डू व्हाई कुडंट आई, शी आल्सो ट्राइड. सो आउट ऑफ 9 6 बच्चों ने उसका आंसर लिख लिया क्लास 8th का, है ना. व्हाट वी डू, वी अंडरएस्टिमेट द चिल्ड्रन कि बच्चा इतना ही करेगा, बच्चा कैन डू एवरीथिंग. मैंने अभी बच्चों को सरफेस टेंशन सिखाया है, क्लास 1 और 2 के बच्चों को सरफेस टेंशन, जो मैंने 12th में पढ़ा था. And I have made the videos. I can send you the video. Father, I'll send you the video of surface tension. You can just circulate it to all your teachers. How we have simplified it. Each and we have made in lockdown. It was really a boon for us. The lockdown was boon for Swasthan because we made so many videos and we simplified everything. Right? So we cannot blame the students. That students are unwilling to understand because we are not creating the atmosphere in the class. Right? Whatever problems you are facing, they are your limitations, they are your constraints. You have to prove yourself with those constraints. देखो सक्सेसफुल कौन है? जिसके पास कोई कंप्लेन नहीं है, जिसके पास कोई शिकायत नहीं है. भाई इंडिया में रह के कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? रह तो इंडिया में ही रहे हैं ना, सभी लोग इंडिया में रह रहे हैं. In the same system they all are living, but some are able to make the use of their opportunities and some are not. What is the reason? है ना, क्योंकि उनको पता ये मेरी लिमिटेशन है. भाई इंडिया में करप्शन है तो मुझे पहले ही एक्सेप्ट करना है कि करप्शन है. अब मुझे इस करप्शन के साथ काम करना है. आई कैन नॉट जस्ट सिट आइडल ब्लेमिंग द सिस्टम. स्कूल में भी होता है, टीचर्स दे कीप ऑन ब्लेमिंग एट टाइम्स कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है. नो, गुड टीचर्स डोंट हैव एनी एक्सक्यूज एवर, है ना. उनको क्या है, भाई ये लिमिटेशन है, बच्चे ऐसे ही हैं, क्लासरूम में बच्चे भी ज्यादा हैं, टाइम भी कम है, उसके साथ आपको कैसे रिजल्ट देना है और देना. रिजल्ट इज टू बी गिवन बाय द टीचर्स ओनली. द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन द टीचर्स ओनली. दैट इज टू बी एक्सेप्टेड. एंड डोंट एवर थिंक दैट टीचर्स कैन नॉट अर्न मनी. They can mint money. They can mint money. They can mint money. मैम मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कर रही हूँ. मैंने एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे हल्द्वानी में आकर के पहले वाइस प्रिंसिपल काम किया. व्हेन आई केम, बागेश्वर से मैं यहाँ पर आई और फिर मैंने एज ए प्रिंसिपल काम किया. ये ईश्वर की कृपा कहिए या क्या कहिए, इस एरिया में कोई भी स्कूल खुलता है, चाहे डीपीएस खुला, चाहे कोई स्कूल खुला, दे फर्स्ट अप्रोच मी टू बी देयर प्रिंसिपल. फर्स्ट आई एम डिक्लेयरिंग इट ओपनली. तो मैं कहती हूँ भाई मेरे पास क्या है ऐसा, मुझे तो ऐसा ना तो फिजिक्स आती है ना केमिस्ट्री मैथ्स बायो, मुझे कुछ नहीं आता ऐसा कि मैं मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट. आई एम नॉट मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, दो माय सब्जेक्ट वाज केमिस्ट्री. आई हैव डन मास्टर्स इन केमिस्ट्री, है ना, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माय टाइम. आई डिड माय हाई स्कूल इन क्लास इन ईयर 1972. आई डिड माय 10th 72. एंड उस समय मेरे मैथ्स में जो थे 77 मार्क्स थे और साइंस में मेरे 74 मार्क्स थे. ठीक है, 72 में मैंने हाई स्कूल किया. तो आई वाज थर्ड फर्स्ट क्लास करियर आई हैव एक्सेप्ट बीएससी, है ना. बट अभी क्या है, व्हाट अ पर्सन लुक्स फॉर. एक टीचर में हमें क्या चाहिए, एक प्रिंसिपल में हमें क्या चाहिए. योर कंसर्न कि आप क्या करना चाहते हो बच्चों के लिए, वो सब समझते हैं. सारे पेरेंट्स समझते हैं, बच्चे समझते हैं. बच्चे को ये फील जाना चाहिए कि आप उनकी केयर कर रहे हो. दैट्स ऑल, ओनली वन थिंग. नॉलेज के लिए क्या आप तैयार होकर जा सकते हैं, पढ़ के जा सकते हैं. छोटी क्लासेस में बहुत हाई नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन द मैसेज शुड गो टू द चाइल्ड कि मेरी टीचर मेरे लिए कितनी चिंतित है, कितनी वरीड है, कितनी केयरिंग है.
दैट्स द ओनली वन मैसेज, माई टीचर लव्स मी। मेरे आज स्टूडेंट्स बहुत वेल प्लेस्ड हैं, बहुत वेल प्लेस्ड है, सम नॉट ऑल। तो उनके जब मुझे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस मिलते हैं मुझे, बादल को भी मिलते हैं, बादल ने भी भेजा था, बादल को भी मिलते हैं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो मुझे बहुत अच्छे मैसेज मिलते हैं। तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसने अभी ISB, जो इंडिया का बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल है, वहां से उसने मैनेजमेंट किया, और अभी वो मुझसे मिली थी, उसकी मैरिज में हम लोग थे साथ में। तो उसने कहा कि मैम मुझे आपके जैसा टीचर नहीं मिला, जबकि उसने ISB से मैनेजमेंट किया और वहां पर 25 लाख वाज द फीस ऑफ द मैनेजमेंट। अभी तो उसकी 40-45 कितना लाख है। तो व्हाट इज इन मी, उसने कैसे, मतलब हाई लेवल के प्रोफेसर्स के ने उसको पढ़ाया, एक एक लेक्चर वो कहती मैम इट वाज वर्थ अटेंडिंग, शी सेड। तो मुझे लगता कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर मुझे किसी सब्जेक्ट, अगर कोई एग्जाम आज हो जाए, तो मेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं कि मैं उस एग्जाम में पास हो जाऊंगी, right? But what I have that concern. My mind is a discovering mind. All the time it keeps on discovering. छोटी टीचर पढ़ा रहा है, मैं उसको वहीं पे बता दूं, अच्छा देखो इसको ऐसे करो, टेबल देखो। अभी क्या हुआ, हमारी टीचर जो है वो टेबल पढ़ा, एक लेसन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैम क्लास 2 के लिए टॉपिक था। अब हम क्या करते हैं, देखिए क्लास 1 में हम टेबल याद करा देते हैं। टेबल तो याद करने को देनी ही नहीं है बच्चे को, जब तक कि हमने उसका यूज नहीं सिखाया है। याद करने को देनी ही नहीं, यही हम गलती कर रहे हैं कि टेबल क्यों दे रहे हैं हम पहले लर्न करने को बच्चे को। उसने क्या किया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उसने क्या किया, 5 बच्चों को बुलाया आगे, 5 हम टीचर्स थे क्योंकि बच्चे थे नहीं। तो उसने कहा हाउ मेनी लेग्स वन टीचर हैज, 2 लेग्स। हाउ मेनी, देन अगेन 2 2 2। उसने काउंट किया, कितने हो गए, 10 हो गए। कितने टूज है, 5 टूज है, 2 5s, देयर आर 2 5s, 2 5s आर 10। अब बच्चा हमारे यहाँ टेबल याद करता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 3, उसको पता नहीं इसका मीनिंग क्या है। उसको ये नहीं देना है कि 2 1 into 2 नहीं देना है, उसको लिख के देना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, लिख के देना उसको, 2 3s are 6। तो उसको पता चलेगा, अच्छा 3 2s है तो इसका मतलब 6 हो गया। अब उसको बताना है कि बेटा जब कोई भी चीज पेयर में होगी तो आपको बार बार काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने हैं, 10 हैं, 12 हैं। तो अगर आपको टेबल आती होगी तो आप फट से कर लोगे, 2 6 are 8 आपको याद है, 2 6 are 12 आपको याद है, तो आप फट से आंसर दे दोगे। तो उसको यूज बताना है कि भाई टेबल का यूज क्या है ना। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम कहते हैं अब टेबल शुरू हो गई, अब 2 की टेबल याद करो। कॉमन कंप्लेंट होती है पेरेंट्स को कि बच्चे को टेबल नहीं आती। बच्चे को टेबल याद क्यों करनी है, पहले उसको 2 का एग्जाम्पल बताइए, 2 की टेबल का एग्जाम्पल बताइए कि 2 की टेबल पढ़नी क्यों है। जब उसको 2 की टेबल का समझ में आ जाएगा तो 3 4 5 वो अपने आप अंडरस्टैंड कर। बट दिस इज नॉट एट ऑल गिवन इन एनी ऑफ द digital contents that we have these days, like the extra marks, the ABEX we use, है ना। So कहीं भी ऐसे एग्जाम्पल्स दिए ही नहीं है इन एनी सब्जेक्ट। हमने मैग्नेटिज्म पर बनाया है, हमारी मैडम ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है मैग्नेटिज्म पर, है ना। जो बुक में पिक्चर दिख रही है उन्होंने करके दिखाया है बच्चों को एक्सपेरिमेंटली। तो बच्चे को ऐसा, मैं उसको क्लास 2 के बच्चे को समझा सकती हूँ, आई कैन गारंटी। जो मैग्नेटिज्म का लेसन क्लास 6 में है वो मैं क्लास 2 के बच्चे को समझा सकती हूँ, माई टीचर कैन एक्सप्लेन। So don't underestimate your child, your student, that the child cannot understand. Child can understand everything. वो बहुत शार्प है, आज के हिसाब से बहुत शार्प है ना। वो हमें करना है। अब देखिए आजकल क्या है, सब कुछ अवेलेबल है बच्चे के लिए, सारा डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए तो उसको टीचर की जरूरत नहीं है। फिर तो आपको सब अवेलेबल है गूगल पर, आज यूट्यूब पे सब कुछ है, ईच एंड एवरी टॉपिक इज अवेलेबल। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर नाउ? Role of the teacher is this only, to prepare the child to receive. आपने एक बार बच्चे को तैयार कर दिया कि भाई तुम्हें कुछ लेना है, फिर आपकी जरूरत नहीं होगी फिर उसको, फिर वो आपके पीछे भागेगा, है ना। और what is this? This is motivation. This is inspiration. आप लोग टीचर्स हैं, आप लोगों को अगर हमें आपके पीछे पड़ना पड़ रहा, बार बार पुलिसिंग करनी पड़ रही है कि टीचर क्लास में गया कि नहीं गया, इसने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, it means you are not motivated. It means you are not motivated. है ना। There shouldn't be need of any policing on the teacher. Such atmosphere we have to create that the teachers they are self motivated. और जो मनी मिंट करने की मैं बात कर रही हूं आपको,
I have a book, Teacher and Parent. M. Ginott ने लिखी है. Teacher and Child. Teacher and Parent भी है उसकी. Teacher and Child. Do you know what is its cost? आज की डेट पर 35,000, more than 35,000. आज की डेट पर. अब वो बुक मेरे पास है. अब मुझे कैसे मिली? That's a story. When I came to know its price, मैंने वो अपने ना सूटकेस में रखी है कि कहीं खो न जाए. और वो बुक अगर आप पढ़ लो ना, तो nobody can stop you from becoming a good teacher. आजकल वो कुछ रिबेट पर भी अवेलेबल है. कुछ मैं देख रही थी कहीं पर किसी ने कहा कि मैम वो बहुत महंगी किताब है. मैंने कहा मैं वो बुक किसी को नहीं दे सकती क्योंकि मुझे लगता है खो गई तो आई कैन नॉट परचेज इट अगेन. अब वो किसने लिखी? एक टीचर ने लिखी. उस टीचर ने केवल अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा है कि क्या करना है एक टीचर को, कैसे करना है. एक पॉइंट उन्होंने छोटा सा लिखा है, ब्रेविटी. ब्रेविटी माने शॉर्ट हो जाइए. क्लास में जाके हम क्या करते हैं, कोई बच्चों ने कुछ आपस में हो रहा तो सारा टाइम हम इन्वेस्टिगेशन में निकाल देते हैं. क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. नो नीड ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन. बाद में अभी गो है. बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन में ही आधा पीरियड निकाल देते हैं. नो, ब्रेविटी. ब्रेविटी मीन्स शॉर्ट. कितने शॉर्ट में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाद में. चलो अभी फट से पहले पढ़ लेते हैं, है ना. कितना टाइम, हाउ मच टाइम कैन यू सेव इन द क्लास. सो उस बुक में जो लेक्चर्स है डिसिप्लिन पर, बादल ने उसके लेक्चर्स सारे अटेंड किया. हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, बादल, इफ यू रिमेंबर आई हैड शेयर्ड विद यू, है ना. हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड. उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स ने लिखा है कि मेरा टीचर कैसा था. इट इज वर्थ शेयरिंग, वर्थ शेयरिंग. जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो याद करेगा मेरी एलकेजी की टीचर कैसी थी, मेरे यूकेजी की टीचर कैसी थी, मेरा क्लास 10th का टीचर कैसा था. अभी हम लोगों ने एक मीटिंग अटेंड की, तो उस मीटिंग में एक प्रोग्राम था, तो उसमें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मैं अपनी एलकेजी की टीचर को बिल्कुल नहीं भूल सकता, मुझे आज भी याद है. ये मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, मुझे आज भी याद है अपनी एलकेजी की टीचर. वो इंप्रेशन अगर टीचर का नहीं है, इसका मतलब है कि टीचर ने काम नहीं किया है. आज भी द स्टूडेंट शुड रिमेंबर, राइट. और वो किसके लिए? आपके कंसर्न के लिए, आपके लव के लिए. अगर आप बच्चों को प्यार करेंगे तो बच्चे आपको प्यार करेंगे, और बच्चे जब आपको प्यार करेंगे तभी वो आपसे सीखेंगे. अगर वो आपको प्यार नहीं करते हैं तो वो आपसे कभी नहीं सीखेंगे, कभी नहीं सीखेंगे, नेवर. So the very first thing, you have to judge yourself whether my child loves me or not. What needs to be done? That my child loves me. You have to keep the child happy. First be happy. जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा भाई, पहले I want a smile on all your faces. So this way only, when you go in the class, you have to say smile first. Let us have a laughter. छोटी क्लासेस में तो आप लाफ्टर भी कर सकते हैं, बड़ी क्लासेस में तो बच्चे हंसेंगे ही नहीं. हमने ट्राई किया था, बादल पता नहीं थे उस समय जब हमने कहा था असेंबली में कि भाई हंसो, तो बड़े बच्चे तो हंसते नहीं, छोटे बच्चे आराम से. तो याद, डू यू रिमेंबर बादल, हमने किया था असेंबली में, है ना. तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीजें यू हैव टू डू एंड मेक योरसेल्फ एन आइडियल टीचर. वेदर यू आर एन आइडियल टीचर और नॉट, अगर आपने काम किया होगा तो यू विल बी एन आइडियल टीचर, राइट. So a lot of time I've taken, complete 1 hour is consumed. Complete 1 hour is consumed, but I have a lot to say to you. It's not completed, right? So many things to share with you, still so many things to share with you. But this is first motivation. If it doesn't motivate you, it means you cannot be motivated, right? So, आपको बच्चे को, you have to prepare the child to receive. That's your role only. Once you have prepared the child to receive, the child will be after you. You will not have to rush after the child, and child will give you the results that you expect from the child, right? So that's all for today. If there are any question, anything you want to ask, any question? Okay, teachers, those who have any kind of questions, we will begin with the question session now. So, I have received one question from Ms. Mamta Brajwasi. Brajwasi ma'am, you can ask. Yes, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Can I see you? You can raise your hand. Are you on screen? Are you on screen? Yes, sir. Yes, sir. Raise your hand. I can see many faces. So who are you? Mamta. Yes. Okay. I have seen. Good. Good afternoon, ma'am. Good afternoon.
Very nice to meet you. I'm very pleased to hear your valuable thoughts. Actually, I prepared so many questions, but I got the answers of many of my questions. Good. So, my first question is ongoing COVID-19 pandemic situation. Ma'am, is there any effective way to reduce the learning gap of the students who are lagging in their learning? In COVID-19, during this? Yes, sir. Because this is the problem this time, because you are not with the child. You are not with the child. So what you will have to do, you will have to take the parents into confidence. Beta dekho, a teacher gets 1,260 hours only. Remaining time is with the parents. I have calculated. They have 4,160 hours with them. So this is to be kept in mind of the parents again and again. कि एक साल का मैंने बनाया हुआ, मैं बादल को भेज दूंगी, मैंने सारा कैलकुलेट किया हुआ है, तो पेरेंट्स को आपको बार बार बताना है कि आपके पास 4,160 आवर्स है, मेरे पास केवल 1,260 आवर्स है, राइट? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर. और इस पेंडेमिक, इस समय जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही, इस समय पेरेंट्स का रोल इज मोर. ये वी हैव टू एक्सेप्ट. टीचर्स कैन नॉट डू मच इन दिस, राइट? बट जैसे हमने क्या किया था, देखो ना, हमने क्या किया, बच्चों को एक्टिविटीज दी, ड्राइंग एक्टिविटीज दी, साइंस एक्टिविटीज दी, और बच्चों से लगा कि आपको अपने फोटोज और वीडियोस अपलोड करने हैं. वो दे यूज्ड टू सेंड एवरीडे. एक बच्चा, हमारे 1-2 बच्चे थे जो वीक थे क्लासेस में, तो उन बच्चों में भी चेंज आया है बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज. तो ऐसे बच्चों को आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू मेक देम लाइट हार्टेड. पहले उनका इंटरेस्ट इज टू बी क्रिएटेड. वो पढ़ाई से नहीं क्रिएट होगा, उसके लिए उनको एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी सेपरेटली. मेरे पास मेनी एक्टिविटीज आर विद मी, ड्राइंग एक्टिविटीज. इफ यू से आई कैन जस्ट सेंड यू दोज एक्टिविटीज मेड बाय माय टीचर. और छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, है ना, तो आप उनको बच्चों को भेजिए जो बच्चा आपको लगता है वीक है. पहले पेरेंट्स से बोलिए भाई उससे डायरेक्ट मैथ्स और साइंस एक्सपेक्ट मत कीजिए अभी, है ना. पहले आपको उसको बेसिक लेवल पर लाना है. तो उसके लिए पहले आपको उसको एनर्जाइज करना है, एक्टिवेट करना चाइल्ड को, मोटिवेट करना चाइल्ड को. तो यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग. तो साइंस एक्टिविटी भेजिए स्मॉल, और पेरेंट्स से बोलिए कि बच्चे से ये कराइए, मेक श्योर कि बच्चे ने ये किया है और मुझे वीडियो भेजिए, और फिर बच्चे को एनकरेज कीजिए, है ना. तो क्या होगा कि बच्चा विल बी एक्टिवेटेड. अभी बच्चे क्या होते हैं, दे आर डल. आई एम जस्ट टेलिंग यू, दे आर डल, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हम वी आर स्टार्टिंग विद द क्लासेस. नो, क्लासेस शुड स्टार्ट विद एक्टिविटी. हर क्लास अप टू क्लास 5 तक यू कैन नॉट गो इन द क्लास विद लेक्चर. आप एवरीडे प्लान सम एक्टिविटी इन द क्लास. एक्टिविटी मतलब ऑलमोस्ट एवरीडे आई कैन से, है ना, कि एक एक्टिविटी से बच्चे दे टेक इंटरेस्ट, एवरीबडी टेक्स इंटरेस्ट, एंड देन ओनली यू कैन मोटिवेट. सीधे लेसन से शुरू करोगे तो बच्चे को बोरिंग होता है, हर किसी के लिए बोरिंग होता है ना. तो कोविड-19 में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. मैंने पेरेंट्स से भी कहा है कि देखो बच्चा कुछ ना कुछ सीखे. देखो मेरे पास एचसी वर्मा का एक वीडियो है, मैं बादल को भेज दूंगी, बादल उसको आप लोगों को सबको भेज देंगे. व्हाट इज लर्निंग, एचसी वर्मा ने कहा. एचसी वर्मा इज द बेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ इंडिया. एचसी वर्मा, उनकी किताबें जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो पढ़ते हैं. तो उनका एक वीडियो है, उसको सारे पेरेंट्स को भेजिए, तो पेरेंट्स को समझ में आएगा कि भाई आपको क्या एक्सपेक्ट करना है. उसको पेरेंट्स को भेजिए, है ना. ऐसे ही अभी देखिए सीबीएसई के सेक्रेटरी का एक इंटरव्यू आया है, वो मैं बादल को भेज दूंगी. उसको सारे पेरेंट्स को भेजिए आप. सीबीएसई के जो सेक्रेटरी का है उसको सब पेरेंट्स को भेजिए आप. वो हिंदी में, उसमें कोई पेरेंट ये नहीं कह सकता कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना. और उसमें देखिए वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कूलों से. वो कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप पढ़ा रहे हैं स्कूलों में. इन्वेस्टिगेट करना सिखाइए बच्चों को. उनको प्रोजेक्ट दीजिए, उनको रिपोर्ट दीजिए, उन्हें प्रोजेक्ट दीजिए कि वो कुछ डिस्कवर करें, वो कुछ ढूंढे. इतना इजी नहीं है, बट यू शुड नो दैट व्हाट इज टू बी डन. ऐसा ना हो कि टीचर को ये पता ही नहीं कि करना क्या, और ऐसा ही हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू गिव द रिजल्ट, एंड टीचर्स आर नॉट डेवलपिंग देयर कैपेबिलिटीज. देखो अभी मुझे एक प्रिंसिपल चाहिए अपने स्कूल के लिए, मुझे पूरे हल्द्वानी से एक प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है. टीचर्स अपने को ग्रो ही नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट ग्रोइंग देमसेल्फ टू बी अ लीडर. अब अगर आप खुद लीडर नहीं बन पा रहे हैं तो आप बच्चे को कैसे लीडर बनाएंगे भाई, आप बताइए. मैंने तो अपने टीचर को साफ साफ कह दिया, मैंने कहा 5 साल के बाद इफ यू कैन नॉट बिकम अ कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल, आई नॉट लेट यू कंटिन्यू. मुझे एक टीचर नहीं चाहिए. मुझे एक टीचर नहीं चाहिए कि जो एज ए टीचर ओनली इज कंटिन्यूइंग फॉर 5 years, 6 years, 7 years. No, not at all. After 6, 7 years, 5, 6, 7 years, you should be capable to become a coordinator or a principal.
सबको नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि इतने कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिएंगे, लेकिन यू शुड बी केपेबल, यू शुड बी केपेबल टू बिकम अ प्रिंसिपल। अगर आप एक टीचर ही बने रह रहे हैं, इसका आपने काम नहीं किया। देखो जब टीचर्स अपना रिज्यूमे लिखते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं कि 20 इयर्स एक्सपीरियंस। तो सीबीएसई के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि आपका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस रिपीटेड 20 टाइम्स है। डोंट से दैट आई हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक साल में जो है वही कर रहे हो। आपका अगर टीचिंग पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या वही हो जहां आपने ज्वाइन किया था। एंड दिस इज लैकिंग इन द टीचर्स, रियली लैकिंग इन द टीचर्स, दे डोंट वांट टू ग्रो। मैंने तो यहाँ अपने टीचर से क्या किया, रोज आपको कुछ लिख के लाना है जो आपने पढ़ा है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। एवरी डे आई टेल द टीचर्स दैट यू हैव टू राइट समथिंग, और सुबह आकर के मेरे टेबल पर आ जाता है वो, और अगर किसी ने नहीं लिखा तो होमवर्क नॉट डन लगा देती हूँ मैं। वो होमवर्क आपको ये नहीं करना है कि लेसन तैयार करके लाना है, कुछ करना ये नहीं। आई वॉन्ट यू टू रीड समथिंग, है ना। और अभी जो है चिन्मयानंद जी का एक मेरे पास आया था, मैं भेज दूंगी, बादल को सब भेज दूंगी। उन्होंने कहा कि हर टीचर ये देखे कि हर दिन उसने 2 पेज पढ़े कि नहीं पढ़े, हर दिन। अगर वो 2 पेज कुछ और इंग्लिश में, जिसका जो विषय है, हिंदी है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़िए। अगर आपने वो नहीं पढ़ा, 2 पेज नहीं पढ़ा, यू कैन नॉट बिकम अ गुड टीचर। Then don't blame that we are not getting hike in the salaries and all, really, है ना। So that way, emotional climate is also in a school that is given, and you have to judge your emotional intelligence. That emotional, वो तो बादल आपको एक्सप्लेन कर देंगे कभी, है ना, कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में आप कहाँ हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में कहाँ है। इंटेलिजेंस सभी के पास है, आईक्यू तो सबके पास है, बट एसक्यू में कहाँ हैं आप, ईक्यू में कहाँ हैं आप, इमोशनल क्वेश्चन आजकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उसमें कहाँ है आप, क्या करना है। तो आपको ग्रो करना है, और यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, एंड सो दैट वी कैन हैव सच लीडर्स। मैंने कहा ना कि लिखिए अपने एक्सपीरियंसेस, लिखिए, है ना। 1 बुक इज वर्थ 35,000 रुपीज। अब उस टीचर ने बताओ थोड़ा सा काम किया, उससे सारी जनरेशन बैठ के खा रही होंगी, क्योंकि रॉयल्टी इतनी आ रही होगी, बुक की रॉयल्टी इतनी आ रही होगी कि देयर इज नो नीड टू डू वर्क इन हिज जनरेशन, इन हिज फैमिली, है ना। सो अ टीचर कैन डू मिरेकल, टीचर कैन डू मिरेकल। एससी वर्मा फिजिक्स के टीचर है, सारे इंडिया में फेमस है, प्रोफेसर तो थे, कितने फिजिक्स के प्रोफेसर ऐसा नाम बना पाए जैसा एससी वर्मा जी ने बनाया, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट एनीथिंग। Not clearly audible, ma'am. Good afternoon. I'm good that teachers are asking something good, but not audible. Yes, Pushpa ma'am, coming to the network area. Good afternoon. Not at all audible, not at all audible. Badal, have you heard? Yes, ma'am, just. Unable to. She is asking what type of teaching style is best for today's student. Teaching style is best. Which kind of? नहीं, टीचिंग स्टाइल तो मैं उसी पे तो बात कर रही थी, टीचिंग स्टाइल पे तो बात कर रही थी कि आपको क्या करना है करके। जी। What are the styles? Which styles do you know? बताइए आप कौन से स्टाइल्स आप जानते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आपको सबसे पहले आपको बच्चे को प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको you don't have to give the answers your own, let the answers come from the students only। जैसे मैंने यही कहा ना, जैसे आपने कहा कि लाइट जो है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, आप पहले ही बता देते हो। क्यों बताते हो बच्चे को? आप बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, पानी को गिराओ, लाइट को दिखाओ, फिर देखो कि बच्चा क्या कहता है कि लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। Which kind of? Badal, can you tell? Pushpa ma'am, send your question in the text. I will ask from ma'am. Till the time, Kavita ma'am send a message. Kavita ma'am,
Please ask. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. I'm really very happy that teachers are asking questions. Ma'am, can you hear me? Now I can hear you. I can see you also. I can hear you also. Yes, sir, ma'am. Good afternoon. I am extremely privileged to have the opportunity to address you, ma'am. Thank you. Your words are the really keys that will help us to stay up to date with the latest developments. Ma'am, my question is, hello? Yes, I can Ma'am, hear. can you hear me? I can hear. Ma'am, my question is, as we all know that the students, they differ in terms of their intelligence, motivation and interest and many more things. So as a teacher, what should be my role in meeting such individual differences? This is a very common problem, ma'am, in classes, heterogeneous classes, because we have heterogeneous classes, है ना? So that's why I'm saying, that you have to cater to the need of every child. Just what I have done in my school, right? We have given flexibility of time. Like periods are little long. 6 periods only we give, so that sufficient time is given, right? So first you have to simplify. Any topic you tell me that you are starting this topic and the child is unable to understand, right? So पहले तो आपको ही उसको you have to simplify it as much. Any topic you tell me, so I can then help you with the help of topic only, कि how you will teach this topic, right? देखिए बेटा, you cannot do miracle in the beginning itself. Listen, है ना? You have to wait. Patience should be there to get the result, right? Patience should be there, because immediately it may not be given in 1 year only. It may take 2 years or 3 years also. But before the child reaches class 9th, the result should be there, right? तो अभी इसके लिए एक सोल्यूशन मैंने और ये भी दिया था, अपने यहाँ भी दिया था, कि in school, in classroom, there should be classroom library. There should be some books in that class only. अब जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, the child, some children have understood, some are not. So what you can do, those who have understood, they can be given the books at the back. They can read the books and you can clear the doubts of the students who could not. पहले आपको देखिए मैम, जब very first day when you get the class, you have to take a test of the students. और देखना है कि what is the level of the different students, how many categories of the students are there, right? And then you have to focus upon that which category needs more attention and which category needs less attention. जो मैंने भी फेस किया, तभी तो मुझे लगा कि गलती कहाँ पे हो रही है. अभी मेरे पास केवल 9 बच्चे थे, केवल 9, उसमें भी सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आया, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत वीक थे, they were not ready, they were not up to the level of class 5 only, है ना? लेकिन अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं बेटा, तो आपके ना ग्रेजुअली रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन आपका अटेंशन शुड बी ऑन द वीक स्टूडेंट्स. Your attention should be on the weak students, right? Understood? So this way you can do, and moreover, आप एक तो ना overnight result मत expect कीजिए. You will get a result overnight. आपने class 6th में पढ़ाया, you made the efforts. If then you have to pass it on to the teacher of class 7th also, you have to tell the teacher of class 7th कि this child has this learning pattern, है ना? क्या लर्निंग पैटर्न. मैंने भी पेरेंट्स से यही कहा, मैंने कहा देखो भाई, लॉकडाउन में आप लोग बच्चों के साथ हो हर समय. अब आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है. आपका टाइम है, पूरा टाइम है. तो आप इस लॉकडाउन में बच्चों का लर्निंग पैटर्न हमें बताइए. ऑब्जर्व कीजिए अपने बच्चे को कि आपका बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे का, है ना? क्योंकि बाकी समय में तो आपके पास टाइम नहीं है. तो वो लर्निंग पैटर्न आप लोगों को सीखना. दिस इज रिसर्च. जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें भी समझाई कि भाई इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ाएंगे कि हर बच्चे के समझ में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज रिसर्च, राइट? वो आपको करना है. अब थोड़ा सा मेरी बैटरी इज रनिंग लो. उनको बोलो बैटरी थोड़ा सा हो रही है, गुलाबी का कुछ नहीं है ना बेटा. सो ये नहीं है कि आपको ओवरनाइट रिजल्ट मिल जाएगा. You will have to wait, but आपको ये दिखना चाहिए कि there is some result. ये नहीं कि there is no result. अगर if the child shows some result in class 3rd, then some in 4th, so by the time the child will reach class 10th, there will be some result. है ना? Yes, ऐसे ही आपको. Ma'am, one more question. Yes, do ask. Ma'am, how can I motivate students to participate maximum in co-curricular activities? Yes, how can you participate, motivate the students? Ma'am, if you are genuinely interested
टू मोटिवेट योर चिल्ड्रन, इनको कर देखिए ना, हर बच्चा जो है उसमें यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो, यू हैव टेक द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो। बैटरी लो हो रही है तो दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो डांस में ही पार्टिसिपेट करे, स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट करे, बट यू विल हैव टू टेल देम द यूजेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको आगे जाके क्या फायदा होगा, अगर आप डांस सीखोगे तो आपको डांस में क्या फायदा होगा, है ना। अगर आपको म्यूजिक सीखोगे तो इसके क्या रोल्स हैं, आप उन्हें पहले बताएं, पहले उनको ये मत बोलिए कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, नो